has lost to Kartikeya Sharma, an independent. The Congress party is furious, not knowing what hit them. Getting in some pictures now to start This is exclusive news break at 6 p.m. The CCTV pictures from Saharanpur are exclusive on Republic, and we've had these pictures come into our newsrooms a few minutes back. Let's go across straight to those pictures that came in. Saharanpur violence, CCTV sequence, and these were the pictures that came in. I'd like to go across to my colleague and our team of reporters who've been tracking the story from Saharanpur, from Prayagraj, also from Lucknow. There were some reports of how the protests unfolded, but in many parts of the state it turned violent. Let's play out some of the reports that we've been filing from across the state of Uttar Pradesh. Let's stay with these pictures. In fact, these are the first pictures coming in of the Saharanpur violence CCTV, and these are pictures of how the situation went out of control. Gaurav, my colleague, is joining me on the phone line on the show this evening. Gaurav, ये जो CCTV footage अभी जारी की है पुलिस ने, what do those pictures show and what is the police claiming? देखिए, लगातार जिस तरह से 3 जून की हिंसा के बाद हमने देखा, पहले कानपुर में एक बवाल होता है, उसके बाद हिंसा होती है, पथराव होता है, और उसके बाद जैसे ही अगला जुमा आता है तो उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद ही अब पुलिस ने सीसीटीवी जारी किया है। इसमें वो सभी उपद्रवी हैं जो काफी हद तक इसमें कैद है, जिनकी पहचान की जाएगी और उनकी जल्द ही अरेस्टिंग की जाएगी, जिसके लिए लगातार जो टीमें हैं वो एक्शन है। कानपुर में हमने अब तक देखा जिस तरह से एक के बाद एक लगातार एक्शन हो रहा है, अरेस्टिंग हो रही है, और सबसे अहम बात यह कि इन उपद्रवियों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है जिसके चलते एक बड़ा मैसेज जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा उत्तर प्रदेश में देखने को ना मिले। साफ तौर पर हमने देखा कि गैंगस्टर एनएसए जैसी कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी है वो भी सीज की जा रही है। वहीं कुछ ऐसे भी माफिया हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर सीएम योगी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो हिंसा है ये उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी ऐसी हिंसा करता है साफ तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर और एनएसए जैसी कार्रवाइयां भी की जाएंगी। Staying with these pictures, and you take a closer look at these pictures and you see how situation went out of hand. In this particular sequence, I'll play that full frame once again. You can see at different points, in fact, you can also see the police and the para forces marching. In some places, some of these protesters get violent. In fact, you will see now on the top right of your screens, one of them trying to push all the bikes that are parked on the ground. You will see that that's highlighted in red on the top right of your screens of how the situation went out of control as thousands of protesters came out on the streets. In some locations in Saharanpur, stone pelting was reported. And you will see how the police is trying to control the crowd, but some of them, not all, some of them are getting out of hand. Some pushed the bikes to the floor. In many places, there was also arson reported. Some of these vehicles were set ablaze. And here are some of the reports that our colleagues have been filing from across Uttar Pradesh today. आसपास 1 से 2 बजे के बीच में जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए एहतियातन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की है। अब मैं उस गली की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से लोग निकले थे, जहां से पत्थर बरसाए थे, वहां पर आरएएफ की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। देखिए, ये आपको समझना होगा कि अब पुलिस ने उस जगह को चिन्हित कर लिया है जहां से लोग निकल रहे थे बाहर। ये एक गली है जहां से लोग निकले थे। दूसरी जगह मैंने आपको दिखाई, वहां पर पहले से ही आरएएफ की टुकड़ी तैनात है। पहली टुकड़ी यहाँ पर तैनात है। दूसरी टुकड़ी दिखाने की कोशिश करूंगा। लगातार पीएससी के फोर्सेज यहाँ पर 2 टुकड़ी अभी हाल ही में पहुंची है। अब मैं आपको एक गली के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा और वहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। और जैसे जैसे वक्त करीब होता जा रहा है, मैं फिर से बता दूं कि कल 1 बजे के आसपास हिंसा हुई थी, 1 से 2 बजे के बीच में, इसलिए यहां पर फोर्सेस को तैनात किया है। ये दूसरी गली है, यहां पर भी आप देख सकते हैं
पुलिस के जवानों का सख्त पहरा है। अंदर आप देखिए बहुत सकरी गली है और यहाँ से ही लोग कल निकले थे एकाएक हाथों में पत्थर लेकर। अभी भी हमें छोटे छोटे ईंट के टुकड़े दिखते हैं, कई जगह पर दिख जाते हैं। बहुत हद तक अगर देखा जाए तो सफाई पूरी कर ली गई है, लेकिन यही वो गली है। 3 गली हमने बताई है और तीनों जगह से ये भी सामने आया, खुद एसपी ने इस बात को जाहिर किया है कि कुछ नाबालिग भी थे, कुछ नाबालिग थे जो हाथों में पत्थर लेकर आए और सुनियोजित तरीके से पत्थर बरसाए। ये देखिए आप, छोटे छोटे टुकड़े अभी भी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब खाकी का इकबाल बुलंद है और जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 2 आरएफ की टुकड़ी और पीएसी की एक फ्रेश टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है। कुछ लोगों को चोट आई थी जो आरएफ के जवान है। थोड़ा संभल कर रोहित, आप आगे आइए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक घर में जोरदार पत्थर बरसाए गए। ये देखिए एक होटल है, यहाँ पर पूरा का पूरा कांच तोड़ दिया गया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर भी ईंट पत्थर बरसाए गए और इस तरीके से बरसाए गए कि कोई सिर्फ और सिर्फ कुछ देख नहीं रहा था, नुकसान पहुंचाने की सोच कर ही यहाँ पर पहुंचा था। ये आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये हर जगह जो होटल मालिक हैं वो बताते हैं कि हमने अपनी जान अंदर छिपकर बचाई है। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ इधर की। ये वो रोड है जो पूरा का पूरा खाली कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जब पत्थर बरसाए गए थे, एक तस्वीर वो देखिए आप, उस घर की तस्वीर रोहित दिखाइए। उस घर से भी पत्थर फेंके गए उसके अंदर और वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीर इस समय प्रयागराज की आप देख रहे हैं और अब यहाँ से व्यवस्था को टाइट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक और देखिए वाहन जो है वो वहाँ पर लगा दिया गया है। पूरी की पूरी